Function. So what is function? If you look at the definition of the function, it says that if A and B are any two non-empty sets, then a function f from A to B, which is denoted by f such that A to B, is a rule which assigns each element of a unique element of set B. It says that elements present in set A, every element present in set A must be assigned a unique element from set B. Or you can say that images present in set B must be assigned to every individual element of set A. I'm going to further clarify it through drawing two sets, non-empty sets over here. So there you go. I'm going to draw two non-empty sets over here. First elements of set A. And then elements of set B. Now, according to definition, which is, it says that every element present in set A must be assigned a unique element from set B. यानी यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है हमारे पास, कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट को एक यूनिक एलिमेंट हमने असाइन करना है सेट बी से। अब ये रिलेशन शो कर रहा है यहाँ से, ठीक है। तो हम 1 जो है वो एक इमेज इसको हम असाइन करते हैं और या एलिमेंट असाइन करते हैं, और 2 को हम बी असाइन करते हैं और 3 को हम सी असाइन करते हैं, लेकिन डी जो है वो यहाँ पे रह गया है। अब इसको हम कोड डोमेन कहते हैं और इसको हम डोमेन कहते हैं। और ये 3 एलिमेंट्स जो सेट बी में है इसको हम रेंज कहेंगे। रेंज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनका रिलेशन है सेट ए के एलिमेंट्स के साथ, और डी इसमें इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि डी का कोई रिलेशन किसी एलिमेंट के साथ नहीं यहाँ पर है, क्योंकि ऑलरेडी जितने 3 एलिमेंट्स थे वो ऑलरेडी ऑक्युपाइड हो गए हैं इधर 3 एलिमेंट्स जो हैं सेट बी के। तो डी जो है यहाँ पे अकेला रह गया, वो कोड डोमेन में आएगा, रेंज में नहीं आएगा। रेंज का मतलब ये होता है कि इसका रिलेशन सेट ए के साथ लाजमी होना चाहिए। तो इसको हम ऑर्डर पेयर में इस तरह लिखेंगे कि 1 का ए के साथ रिलेशन मैप कर रहा है, या उसका यूनिक एलिमेंट जो है ए है, और 2 का बी, और 3 का सी। सही है। और फिर अगर हम फर्दर बात करें तो डोमेन के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास? डोमेन के एलिमेंट्स हैं हमारे पास सॉरी 1 और 2 और 3 हैं, ठीक है। और कोड डोमेन के हमारे पास हैं ए, बी, सी एंड डी। और रेंज हमारे पास ए, बी, सी है, क्योंकि रेंज का मतलब है कि ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। डोमेन का मतलब है ऑल द इनपुट वैल्यूज, एंड द रेंज का मतलब है ऑल द पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज। सो हमारे पास जो इधर एलिमेंट्स जो हैं वो डोमेन कहलाते हैं, तो इधर ये डोमेन हो गया। और कोड डोमेन जो हमारे पास है ए बी सी डी, जो सेट बी है, इंटायर सेट बी हम इसको कहेंगे वो कोड डोमेन। और रेंज जो जिसका रिलेशन है ऑलरेडी सेट ए के एलिमेंट्स के साथ, वही एलिमेंट्स हम रेंज में लिखेंगे। So for function it is important that any element or every element present in set A must be assigned a single unique element from set B. You can't leave any element over here because every element must be assigned a unique element from set B. If it is 4, so you can't leave it. You must need to assign a unique element from set B. You can assign it like set B. You can assign B image, or if you want to assign D image or D element, a unique element from set B,
then it, but you can't leave any individual element in set A. It is the property of function. Every single element present in set A must be assigned a unique image from set B. Now further I'm gonna elaborate the function and its types, which are one function, onto function, and into function. So types of function. The first type of function is one function. If you look at its definition, it says that a function from such that a to b is said to be one function if different elements of set A has different image in set B. It says that every element present in set A must have a different image in set B. It will be clarified through two non-empty sets. So here I am drawing two non-empty sets over here, which are 1, 2, and 3. So it is like previously, as I mentioned, that you need to assign a unique element from set B. So it is one function. Why it is one function? Because every element has been assigned a single image from set B or single element from set B. You can say this like 1, 2, 3, A, B, C. You can also like so over here every element has been assigned a unique element from set B. So it is called one function. यानी वन फंक्शन के लिए लाजमी है कि जितने भी एलिमेंट्स यानी सेट ए में प्रेजेंट हैं, यानी जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास सेट ए में प्रेजेंट हैं, इनके लिए लाजमी बात है कि एक ही इमेज होना चाहिए, दो इमेज नहीं होने चाहिए सेट बी में. यानी इसका अगर हम करें तो आप ये इमेज 2 के लिए इमेज ले लेंगे, 1 का डी सी ले लें और 3 का ए ले लें, लेकिन ओनली वन इमेज मस्ट बी असाइंड टू इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ सेट ए. तो ये प्रॉपर्टी जो है वो पूरी करती है वन फंक्शन की. यानी वन एलिमेंट ऑफ सेट ए must be assigned one image of set B. So this is the property of one function. So if you look at the second type of function, it is onto function, and let's look at its definition. It says that a function such that set A to B is said to be onto function if each element of set B has pre-image in set A. So it says that every element present in set B must be assigned every single element of set A, or you can say that set B must have pre-image. Every element of set B must have pre-image in set A. It will be clarified through by drawing two non-empty sets over here. So I'm going to draw two non-empty sets over here to clarify it further. So this is set A and this is set B. So now according to definition, every element present in set B must have pre-image in set A. यानी यहाँ पर जितने भी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है, अब सेट बी के एलिमेंट्स को हमने देखना है, इसको यहाँ पे कोई एलिमेंट हमसे छूटना नहीं चाहिए. यहाँ पर इसके कोई हर एलिमेंट जो सेट बी का है, कोई ना कोई हमने इसको इमेज जो है सेट ए का या एलिमेंट जो है वो सेट ए का हमने असाइन करना है. जिस तरह हम ए को 2 असाइन कर देते हैं, बी को 1 कर देते हैं, सी को 3 कर देते हैं, और डी को 4 कर दें, और 5 को सी कर देते हैं. तो यहाँ पर हमने कोई एलिमेंट जो है सेट बी का खाली नहीं छोड़ा. वी हैव असाइंड every element to an individual element of set B.
तो ये फंक्शन की प्रॉपर्टी एक तो ये फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट यहाँ पर भी नहीं हमने लीव किया और कोई एलिमेंट यहाँ पे लीव नहीं हुआ, तो ये एक फंक्शन की तो प्रॉपर्टी पूरी होगी क्योंकि ये फंक्शन है, ये जो रिलेशन बना रहा है अपना, ठीक है। तो और फिर ऑन टू प्रॉपर्टी ये है कि जो सेट बी में जितने एलिमेंट्स हमारे पास हैं उसका भी कोई एलिमेंट जो है आप लीव नहीं कर सकते, यानी उसको छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ एक आसान सी बात ये कि आप यानी जो ऑन टू फंक्शन में जो होता है उसमें कोडोमेन जो कि ये है, कोडोमेन एक्चुअली सेट टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सो कोडोमेन जो है वो इक्वल होता है रेंज के। ऑन टू फंक्शन में हमेशा कोडोमेन जो है रेंज के इक्वल होता है। तो यहाँ पर रेंज जो है फॉर एलिमेंट्स ऑफ सेट बी के, क्योंकि रेंज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो रिलेशन बन रहा है, क्योंकि इन एलिमेंट्स का रिलेशन बन रहा है सेट ए के साथ, तो इसलिए हम इन एलिमेंट्स को रेंज कह रहे हैं। तो ऑन टू फंक्शन में हमेशा जो है वो जो कोडोमेन होता है वो इक्वल होता है रेंज के। तो नेक्स्ट इज इनटू फंक्शन। So the last type of function is into function, and if you look at its definition, it says that a function is said to be into function when codomain and range may not be same. यानी यहाँ पे codomain और range same नहीं हो सकता। As previously I mentioned in onto function where codomain and range was equal to each other, but here in into function the codomain and range may not be equal over here. It will be further clarified through to non-empty set if I draw over here. So for function, it is important that every element of set A must be assigned a unique element from set B. So it forms a relation. So यहाँ पर हम एक unique element 1 को assign कर देते हैं और यहाँ पे इसको और यहाँ पे 3 को हमने सी किया। लेकिन ये फंक्शन तो है, फंक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जितने सेट ए के एलिमेंट्स हैं उन्होंने अपने इमेज और एलिमेंट यूनिक एलिमेंट सेट बी से ऑक्युपाइड कर लिए, हासिल कर लिए, पोजेस कर लिए, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर जो डी है वो हमने लीव कर दिया क्योंकि डी के लिए कोई एलिमेंट यहाँ पर बाकी नहीं बचा। और इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनटू फंक्शन दैट एन एलिमेंट इन सेट बी मस्ट बी लेफ्ट सिंगल। अब यहाँ पर ये तो जो सेट बी के जो इंटायर एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं कोडोमेन, और रेंज हमारे पास बना है ए बी सी, यानी 3 एलिमेंट सेट बी के हमारे पास रेंज बना है। सो रेंज और कोडोमेन में फर्क है, रेंज 3 एलिमेंट्स है और कोडोमेन इंटायर एलिमेंट्स जो होते हैं बी के वो होते हैं। तो ऑब्वियसली इट इज नॉट इक्वल। तो रेंज और कोडोमेन हमारे पास इक्वल नहीं है। ये इक्वल तब होता अगर यहाँ पर मैं 4 करके यहाँ पे इसको भी एक इमेज सेट बी का साइन कर देता, तो फिर ये इक्वल हो जाता। रेंज भी 4 एलिमेंट्स होता और कोडोमेन भी ऑलरेडी 4 एलिमेंट्स होता, फिर ये इनटू फंक्शन ना होता, फिर ये होता ऑन टू फंक्शन which I have mentioned earlier in previous type. Okay, so let's go through some examples, and I'm writing some examples over here. Let 1 2 3 are the elements of set A, and A B C D are the elements of set B. So if you remember the definition of function, it says that every element present in set A must be assigned a single element or an image from set B. यानी फंक्शन के लिए लाजमी है कि यहाँ पे जो जितने भी एलिमेंट्स सेट ए में है, यानी 1 2 3 ये एलिमेंट्स है सेट ए में, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट जो है वो खाली नहीं छोड़ना चाहिए। यानी सारे एलिमेंट्स को कोई एक इमेज या एक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट सेट बी से असाइन लाजमी होना चाहिए। अगर हम इसको अब 1 को, अब ये इट फॉर्म्स अ रिलेशन हो हियर, सो अब 1 को हम ए इमेज असाइन करते हैं, बी को हम 2 को हम बी इमेज असाइन करते हैं, एलिमेंट असाइन करते हैं, और 3 को हम यूनिक एलिमेंट यानी सेट बी से हम सी असाइन करते हैं, लेकिन डी को हमने छोड़ दिया। अब ये तो फंक्शन है। फंक्शन क्यों है? क्योंकि ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उन सबको हमने एक एक इमेज या एक एक एलिमेंट जो है वो असाइन कर दिया, ठीक है। अब
डी को छोड़ दिया हमने। अब ये जो है, अब वन एलिमेंट वन इमेज, तो ये प्रॉपर्टी है वन वन फंक्शन की। तो हमने ये होगा, अब टाइप्स में चलते हैं। वन 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 फंक्शन, तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे डी जो है हमने छोड़ा हुआ है, तो ये किसकी प्रॉपर्टी थी, यानी यहाँ पे ये रेंज हो गया और ये जो है कोडोमेन है, ये रेंज है और ये कोडोमेन है। अब रेंज और कोडोमेन इक्वल ही नहीं है, तो जब ये इक्वल नहीं है तो ये कौन सा फंक्शन हुआ लास्ट में जो हमने पढ़ा था, इनटू फंक्शन। तो ये वन वन इनटू फंक्शन है। वो इसलिए क्योंकि रेंज जो है वो रिलेशन होता है सेट बी के वो उन एलिमेंट्स के दरमियान, सेट ए के एलिमेंट्स के दरमियान, सेट बी और सेट ए के एलिमेंट्स के दरमियान जो इमेज या जो एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट्स को असाइन हुए हों, उसको वो रेंज में आते हैं। और यहाँ पे जब डी जो है इसको कोई नहीं असाइन हुआ है, कोई भी एलिमेंट असाइन नहीं हुआ सेट ए का, तो ऑब्वियसली हमने इसको छोड़ दिया। लेकिन कोडोमेन्स है, क्योंकि कोडोमेन तो उसको कहा जाता है कि जो जितने भी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हो, यानी ए बी सी डी, वो जो है वो उसमें आते हैं, कोडोमेन में आते हैं। ए बी सी डी ये जो है कोडोमेन में आते हैं। और रेंज में क्यों कौन सा आता है, रेंज में आता है ए बी सी, और ये जो है डोमेन है, सेट ए के एलिमेंट्स जो होते हैं वो डोमेन होते हैं। तो ये, तो अब ये वन वन इनटू फंक्शन है। वन वन इनटू फंक्शन इसलिए है क्योंकि वन वन की प्रॉपर्टी पूरी हो रही है। वन इमेज और सॉरी वन एलिमेंट फ्रॉम ए हैज बीन असाइंड वन इमेज फ्रॉम सेट बी। तो वन वन यानी एक एलिमेंट एक इमेज उसको असाइन हुआ। टू एलिमेंट है उसको भी एक ही इमेज असाइन हुआ, वो भी एक ही एलिमेंट है सेट ए का। और थ्री भी एक ही एलिमेंट है सेट ए का, और इसको एक ही इमेज असाइन हुआ है सेट बी से। सो वन एलिमेंट मस्ट बी असाइन वन इमेज। तो ये हमारे पास जो है वन वन फंक्शन की प्रॉपर्टी पूरी करी। और इनटू की प्रॉपर्टी कौन सी पूरी करी है, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज है ए बी सी रेंज में आ रहा है, क्योंकि इनका रिलेशन है 1 2 3 के यानी एलिमेंट्स सेट ए के एलिमेंट्स के साथ। और कोडोमेन जो है वो इंटायर सेट बी के एलिमेंट्स को कहा जाता है। तो ये अगर ये रेंज अगर डी को हम यहाँ पर कहते, यहाँ पर फोर लगा के अगर डी के इमेज साइन करते, तो फिर वो जो है वो रेंज और कोडोमेन इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है। इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि रेंज जो है ए बी सी है, सो 3 एलिमेंट्स है, और कोडोमेन जो है वो एंटायर बी सेट के एलिमेंट्स है। तो ये इक्वल नहीं है, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास इनटू की। तो इस फंक्शन को हम कहेंगे वन वन इनटू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन अब वो किस टाइप को हम कह सकते हैं, वो होगा 1 2 3 4 विच इज एलिमेंट्स, सेट ए एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, ये हो गया अपना सेट बी के एलिमेंट्स। सो वी असाइन सिंगल इमेज फ्रॉम सेट बी टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। रिलेशन फॉर्म कर रहा है, मैपिंग कर रहा है। और ये हो गया, हम 3 को सी सॉरी बी असाइन कर देते हैं और 4 को सी असाइन कर देते हैं। अब यहाँ पर हर एलिमेंट ए फंक्शन तो है, क्योंकि हर एलिमेंट जो सेट ए के एलिमेंट्स है वो उन्हें अपने इमेज बी से ले लिए हैं। और यहाँ पर जो है हर जो एलिमेंट है सेट बी का वो आपस में मैपिंग कर रहे हैं हर एलिमेंट ए के साथ। तो यहाँ पर जो रेंज है वो ये 4 एलिमेंट्स है। और कोडोमेन भी जो है वो इंटायर सेट है बी का, जो इंटायर सेट होता है एलिमेंट्स, जो इंटायर सेट सॉरी बी सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो कोडोमेन कहलाए जाते हैं, और ये ए सेट में जो होते हैं वो डोमेन कहलाए जाते हैं। तो रेंज यहाँ पर जिनका रिलेशन है सेट ए के एलिमेंट्स के साथ, उसको हम रेंज कहेंगे। सो ये इक्वल है डोमेन के इक्वल है। तो डोमेन जब रेंज जो होता है डोमेन के कोडोमेन के इक्वल होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। तो ये क्या हुआ, हम यहाँ पर हर एक एलिमेंट ए को हमने एक इमेज असाइन किया। पहली तो प्रॉपर्टी पूरी हो रही 1 1 की 1 1, और दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी पूरी हो रही है, रेंज और कोडोमेन इक्वल है ये।
तो ये होगा 1 1 ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शन प्रॉपर्टी ये पूरी हो रही है। अब कौन से सेट्स जो हैं होंगे वो फंक्शन नहीं कहलाए जाएंगे? अगर हम दो सेट्स इधर नॉन एम्प्टी सेट्स बनाते हैं, पहली प्रॉपर्टी तो फंक्शन की ये थी कि यहाँ पे जो सेट ए के एलिमेंट्स है, हर एक एलिमेंट जो है वो यहाँ पे उसको असाइन होना चाहिए एक यूनिक एलिमेंट सेट बी से। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कोई भी एलिमेंट सेट ए में छोड़ते हैं, यानी हम इसको असाइन करते हैं ये इसको और 4 को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे जो 3 एलिमेंट्स जो है वो ऑलरेडी यानी इमेज जो है बी के 3 एलिमेंट्स बी के हमने ऑलरेडी ऑक्युपाई कर दिए हैं या असाइन कर दिए हैं एक ए के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को। अब यहाँ पर क्या हो गया कि 4 हमने लीव कर दिया, तो ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन की प्रॉपर्टी यही है कि आपने जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर हैं वो उसको असाइन करने हैं। अब ये फंक्शन है, पहले फंक्शन नहीं था क्योंकि हमने यहाँ पे एलिमेंट जो था वो छोड़ा हुआ था। अब दूसरा वो कौन से रीज़न बनती है जब फंक्शन नहीं कहलाया जाता, वो है रिपीट। जब कोई एलिमेंट सेट ए का रिपीट हो रहा हो, वो इस तरह अगर ये अब मैपिंग कर रहा हो, अब 1 है उसका इमेज जो है बी सेट से ए भी बन रहा है और सी भी ले रहा है, 2 का बी है और 3 का डी है और बी भी ले रहा है, या फिर सॉरी सी ले रहा है, सॉरी बी ले रहा है। ठीक है, और 4 जो है वो डी ले रहा है। अब यहाँ पर जो है हर एलिमेंट रिपीट हो रहा है। कौन कौन सा एलिमेंट रिपीट हो रहा है सेट ए का? 1 रिपीट हो रहा है। 1 का ए इमेज भी है और सी इमेज भी है, ये 1 का है। ठीक है, और जो 3 है उसका बी इमेज भी है और डी इमेज भी है। तो यहाँ पर एलिमेंट्स जो हैं सेट ए के रिपीट हो रहे हैं। 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं 1 और 3 जो रिपीट हो रहे हैं उधर सेट बी में। तो इस तरह जो एलिमेंट रिपीट हो रहा हो सेट ए का सेट बी में, यानी उसको 2 इमेज असाइन हो रहे हैं या 2 यूनिक एलिमेंट सेट बी से असाइन हो रहे हो, तो वो फंक्शन नहीं कहलाया जाएगा। ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन, इट इज नॉट फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी